श्री वल्लभाधीश की जय। श्याम सुंदर श्री यमुनी महारानी की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। साते स्वरूप की जय। साते बालकों की जय। श्री मदन मोहनलाल प्यारे की जय। वल्लभ कुल परिवार की जय। भक्त शिरोमणि दामोदरदास सरसानी की जय। 84 252 વૈષ્ણવ की जय। શ્રી વલ્લભ પ્રભુના ચરણ કમલમાં કોટાન કોટી ચિંતાપૂર્વક દંડોત પ્રણામ એવં શ્રી કૃષ્ણાબાબુજી શ્રી માધવીબાબુજીના ચરણ કમલમાં કોટાન કોટી ચિંતાપૂર્વક પંચાંગ પ્રણામ અને સર્વે વલ્લભી વૈષ્ણવને સ્નેહપૂર્વક ભગવત સ્મરણ. ગઈકાલે આપણે સત્સંગમાં જોયું કે 84 વૈષ્ણવ જે જીવ છે એ વિખૂટા પડી ગયા હતા, તો એના માટે શ્રી મહાપ્રભુજીનું પ્રાગટ્ય છે. તો જે 84 વૈષ્ણવ છે, તો 84 નો આંકડો કેમ? 85 નહીં, 83 નહીં, 82 નહીં, 81 નહીં, 84 કેમ? તો કે શ્રીમદ વલ્લભ પ્રભુના દ્વાદશ શ્રીઅંગ, 6 ધર્મ અને 7મું ધર્મી સ્વરૂપ, ઐશ્વર્ય, વીર્ય, યશ, જ્ઞાન ને વૈરાગ્ય, 7મો ધર્મી સ્વરૂપ 12 સતા ને 84. એવી રીતે 84 વૈષ્ણવ શ્રી મહાપ્રભુજીના અંતરંગ અંગ સૃષ્ટિ છે, એ આપણે ગઈકાલે જોયું. અને એના 3 જન્મ, જે 4 યુથ બતાવ્યા, નિર્ગુણ, રાજસ, તામસ અને સાત્વિક, એ ભાવ આપણે ગઈકાલે જોયો. તો નિર્ગુણ યુથ એ 84 વૈષ્ણવ, એના પાછા 3 જન્મ, એ 252, 84, 84, 84, 84 રાજસી, 84 તામસી અને 84 સાત્વિકી. 84 ના અંકને 3 ગુણીએ તો 84 તેરો 252. એ પણ એનો ઉદ્ધાર શ્રીમદ પ્રભુચરણ શ્રી વિઠ્ઠલેશ પ્રભુએ કર્યો છે, અને એ પણ આપશ્રીના અંગ સંબંધી સૃષ્ટિ છે. તો 3 જન્મ બતાવ્યા શ્રી હરાયજી મહાપ્રભુજી. શ્રી ગોકુલનાથજીએ રચના કરી, ટીકા શ્રી હરિરાયજી મહાપ્રભુજીએ કરી. તો 3 જન્મની સમજ, તો 3 જન્મ કેવી રીતે આપણે સમજવાના એ આપણે જોઈએ કે 3 જન્મની સમજ કેવી રીતે પાડે. કે દાખલા તરીકે બ્રાહ્મણનો બાલક, આ જન્મ ભૌતિક જન્મ તરીકે ઓળખાય છે. શરણે આવ્યા પછીની જે સ્થિતિ, તે બીજો જન્મ, અને તે આધ્યાત્મિક જન્મ તરીકે ઓળખાય છે, કારણ કે તેમાં ભાવનાનું સ્વરૂપ વૈષ્ણવત્વ બિરાજે છે. દ્રષ્ટાંત રૂપે ગાયત્રી મંત્રને પ્રાપ્ત થયેલો બ્રાહ્મણ, તેમાં બ્રહ્મત્વપણાની સ્થિતિ રહે છે. ત્રીજો જન્મ મૂળભૂત જે આત્મારૂપ છે, તે જ ભાવરૂપ હોવાથી તે આધિદૈવિક રૂપ છે. આ 3 પ્રકારે 3 સ્વરૂપ, આ પ્રકારે 3 સ્વરૂપ શહેરાઈ જે કહેલા છે, તે સમજવા પૂરતું જ આપણને અહીંયા હરાજી મહાપ્રભુજી બતાવે છે. આ આધિદૈવિક ભાવરૂપ આત્માની સત્તાને અનુસાર જ આધ્યાત્મિક અને આધિભૌતિકમાં ક્રિયાઓ આદિની સ્થિતિ રહેલી છે. તો હવે આપણે 84 વૈષ્ણવ આપણે જીવનમાં અનુકરણ કેવી રીતે કરવું જોઈએ, એનું સંકલન આપણને આપ્યું છે. એનું આપણે અનુસરણ અને મનનીય ચિંતન કરવું જોઈએ. એનું સંકલન આપણે જોઈએ આજે કે દૈવી જીવો કે લીએ શ્રી આચાર્યજી મહાપ્રભુજી નો પ્રાદુર્ભાવ પુષ્ટિ માર્ગમાં થયેલો છે. પુષ્ટિ દૈવી જીવ નિર્ગુણ, सात्विक, राजस, तामस भेद वाले हैं. प्रभु की लीला निर्गुण, केवल भाव प्रधान, सगुण धर्म प्रधान पक्ष वाली है. ब्रह्मसंबंध द्वारा से दृढ़ अंगीकृति है, बिना ब्रह्मसंबंध अंगीकृति नहीं है. वैष्णव के लिए गुरु प्रति स्वामी सेवक भाव की आवश्यकता बहुत जरूरी है अपने जीवन में, और वैष्णव द्वारा ही पुष्टि भक्ति का विस्तार है. कल आपने देखा ना कि दमला ये मार्ग तेरे लिए ही प्रकट कियो है. तो वैष्णव द्वारा જ પુષ્ટિ ભક્તિનો વિસ્તાર છે. દામોદરદાસ સરસાનીજીના હૃદય કમલમાં શ્રી મહાપ્રભુજીએ સમગ્ર પુષ્ટિ માર્ગનો ભાવ, સાર, રહસ્ય, લીલા, રસભાવ, ये सब
आप में विराजमान है महाप्रभु जी की कृपा से। दामोदर सरसा निधि में लीला में ललिता जी का स्वरूप है। श्री गुसाई जी और श्री वल्लभ कुल बिंदु सृष्टि होने से शेष अशेष महात्म्य रूप है। वैष्णव नाद सृष्टि है, वल्लभ कुल है वो बिंदु सृष्टि है। तदियों ने भगवत बुद्धि रखनी आवश्यक है। तादृशी जनों में गुरु से दृढ़ अंगीकृति है, बिना गुरु अंगीकृत नहीं है। वल्लभ कुल में आचार्य महाप्रभु का भाव है। राजी महाप्रभु जी ने बस साखी में बताया न कि छोटो बड़ो न जानिए सभी अग्नि स्वरूप। छोटा बड़ा नहीं है, महाप्रभु जी का भाव स्वरूप वल्लभ कुल बालक में महाप्रभु जी का भाव रखना चाहिए। तन्मयता स्वरूपानंद प्राप्ति अवस्था में देहानु अनुसंधान नहीं रहता है। सेवा में अलौकिक सामर्थ्य प्राप्त होती है। सेवा की आज्ञा की है महाप्रभु जी ने। सेवा कृति गुरु आज्ञा बाधनम व हरिचया, कृष्ण सेवा सदा कार्य मानसिसा परामता। तो यहाँ भी यही बताया है कि सेवा से अलौकिक सामर्थ्य प्राप्त होता है। अपने घर में अपना सेव्य स्वरूप से महाप्रभु जी कृपा से विराजमान है। इनकी सेवा बहुत आनंद से भावपूर्वक प्रभु के सुख का विचार करके करनी चाहिए। प्रभु से अलौकिक मांगना भी जीव के लिए सर्वथा बाधक है। तो लौकिक की बात ही कहाँ रही, अलौकिक मांगना भी जीव के लिए सर्वथा बाधक बताया गया है। फल सिद्धि में अन्याय सर्वथा बाधक है। अपने पूर्ण पुरुषोत्तम अपने घर में विराजमान है, इसमें क्या कमी है कि दूसरों की आशा हम करें। अपने सेव्य स्वरूप को छोड़ के दूसरे देवी देवताओं की आशा करनी, उपासना करनी, यही अन्याय से महाबाधक है। प्रभु से अलौकिक मांगना भी जीव के लिए सर्वथा बाधक महाबाधक बताया है। फल सिद्धि में अन्याय से सर्वथा बाधक है। जो अपने दामोदर दास संबरवाला की पत्नी को अन्याय से हुआ था, ये हमने देखे पहले सत्संग में। मुखता भगवत रस संबंध विना ना बोलना, ये दोष बाधक है। जय मेघन जी ने 3 बार मांगा प्रभु के आगे कि मेरा मुखता दोष चाहिए, गुरु के घर पधारो और एंतन मार्गीय सिद्धांत हृदयारूढ़ दिखाए। तो प्रभु से कुछ मांगना नहीं, मुखता दोष तो क्या है, तो भगवत संबंध विना का बोलना वो मुखता दोष है। पुष्टि सिद्धांत सुने पड़े से नहीं जाना, क्या बोलते हैं कि पुष्टि सिद्धांत है वो पढ़े सुने से नहीं जाना जा सकता, केवल कृपा गम्य है। रहस्य वार्ता का अनअधिकारियों थे गोपन आवश्यक है। अनअधिकारी चेष्टा नहीं करनी चाहिए, जहाँ तहाँ अपना मार्ग का रहस्य बात करनी नहीं चाहिए। रहस्य वार्ता का अन्य अधिकारियों अनअधिकारी से गोपन या गुप्त रखना चाहिए। वो बताया दयाराम भाई ने कि अधिकार बिना वस्तु मिले तदपि अर्थ ना सरे। शायद मिल जाए तो कोई अर्थ नहीं सरता है, अर्थ नहीं सरे। ठाकुर को गोरस तथा स्नेह प्रिय और धुआं तथा क्लेश अप्रिय है। प्रभु को क्या प्रिय है, तो कि ठाकुर को गोरस अति प्रिय है और अपना सेवक का स्नेह। तो अप्रिय क्या है, तो कि धुआं और क्लेश, ये अप्रिय अप्रिय है। धर्म के सुखार्थ बाह्य धर्मों का आवश्यक परित्याग पुष्टि कार्य है। पुष्टि मार्ग में दैन्यता की सिद्धि आवश्यक है। श्री तो दयाराम भाई ने बताया ने कि दीनता के पात्र में मन माणी મૂકીને ભેટ ભગવંતીને ધરીએ છીએ। નિશ્ચયના મહેલમાં વસે છે મારો વાલમો, જેરે જાય તે ઝાંકી પામે ધીરે। તો કે છે કે धार्मिक सुखार्थ बाह्य धर्मों को आवश्यक परित्याग एक पुष्टि कार्य है बताया। पुष्टि मार्ग में दैन्यता ही सिद्धि आवश्यकता है। दीनताना पात्र આપણું જે શરીર છે એને દીનતાનું પાત્ર બનાવી, મન છે ને એને એમાં મણિ સ્વરૂપ મૂકી અને પ્રભુને ભેટ ધરવાનું,
કારણ કે મનની ગતિ પવનની ગતિ કરતા પણ વેગવાળી છે. માટે दैन्यता यानी दीनता से रज महाप्रभु जी दीनता ये महासागर है और महासागर दीनता का महासागर बताया है। दास्याष्टक ग्रंथ में से रज महाप्रभु जी ने वैष्णव को दास बनने को बताया है, कामना रखी है। तो क्या बोलते हैं यहाँ में, धर्म के सुखार्थ बाह्य धर्मों का आवश्यक परित्याग पुष्टि कार्य है। पुष्टि मार्ग में दीनता की सिद्धि आवश्यक है। अर्धभुक्त वस्तु का सेवा में उपयोग नहीं करना। जो हम वस्तु लावे, सामग्री लावे, तो ये सामग्री पहले उत्तम उत्तम प्रभु को अर्पण करनी चाहिए, समर्पित करनी चाहिए, बाद में प्रसादी रूप में हम ले सकते हैं। अर्धभुक्त वस्तु का सेवा में उपभोग नहीं हो सकता। सेवा में लीला की भावनाओं का अनुसंधान आवश्यक है। सेवा में लोक लाज कुल काट का परित्याग आवश्यक है। दुनिया क्या बोलेगी, संसार क्या बोलेगी, सगा संबंधी क्या बोलेगा, ये हमें सोचने का नहीं है। तो सेवा में लीला की भावनाओं का अनुसंधान आवश्यक रखना आवश्यक है। सेवा में लोक लाज कुल काट का परित्याग आवश्यक है। लोक लाज छोड़नी चाहिए। लोक लाज कुल काट और अन्य अवैष्णव के वचनों पर विश्वास ये अन्याय है। अपने वल्लभ कुल के बालकों का वचनामृत किसी की जूठन अपने पेट में नहीं पधरानी चाहिए। तो जो महाप्रभु जी के अनन्य सेवक है, इनका ही संग करना, वल्लभ कुल के बालक का वचनामृत सुनना, ये मर्यादा मार्गी का संग हमारे लिए अन्याय रूप है। यथा देह तथा देवे सूत्र अनुसार सेवा में आवश्यक है। यथा देह तथा देवे ये अनुसार सेवा करनी आवश्यक है। तदीय पर प्रीति आवश्यक है। भगवदियों पर प्रीति राखवी आवश्यक है। भगवत सुखार्थ टेक रखनी वैष्णव का धर्म है। अधिकार प्राप्ति बिना दास भाव से में शरण भाव बाधक, सख्य भाव बाधक है। कि अधिकार प्राप्ति बिना दास भाव में सख्य भाव बाधक है। दामोदर दास संबरवाला के प्रसंग में हमने देख लिया पहले सत्संग में कि बिलाड़ी सैया बिगाड़ गई। अभी दास भाव है, सख्य भाव नहीं हुआ। चित्रा सखी सैया संवारने की सेवा है चित्रा सखी का। भूतल पर दामोदर दास संबरवाला के भाव से प्रकट हुए। तो यही बताया कि अधिकार प्राप्ति बिना दास भाव में सख्य भाव बाधक है। दास भाव रखिए तो दास को उल्टा करके जो देखे तो सदा पास में रहना है, तो हमारे में दास भाव होना अति आवश्यक है। अधिकार अनुसार की हुई सेवा ही फल रूप है। गुरु सेवा फल रूप और प्रतिष्ठा बाधक है। गुरु सेवा अवश्य करनी और प्रतिष्ठा के लिए नहीं करनी। प्रतिष्ठा पुष्टि मार्ग में महाबाधक है। तदियों की सेवा से अन्याय आदि महादोषों की निवृत्ति निश्चित होती है। तदियों ये भगवदीनी सेवा ये करवाती, ये करने से अन्याय आदि जो महादोष वो निवृत्त हो जाते हैं, ये निश्चित है। वैष्णव का अन्याय वाले का संसर्ग भी बाधक है। इसी अन्याय का संग भी करना हमारे लिए बाधक है। पुष्टि भक्ति पतिव्रता धर्म रूप है। भगवत संबंध बिना की सर्व वस्तु कामनाओं का त्याग ही आश्रय है हमारा। वैष्णव के सेव्य स्वरूप और इनकी वस्तु सर्व वस्तु अंत में गुरु के वहाँ ही जानी चाहिए। सेवा बिना देह की स्थिति अनावश्यक है। हमारे भगवती काश्य में परम भगवती वैष्णव हो गए। ये बोलता है कि जब तक सेवा स्मरण रहे तब तक भूतल पर रहना उचित है। जब सेवा छूट जाए तो जीना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो जब तक जीव है, जान है, तब तक सेवा छोड़नी नहीं चाहिए। सेवा बिना देह की स्थिति अनावश्यक है।
मानसिक सेवा सर्वोपरि है। इनकी स्थिति में सर्वज्ञता प्राप्त होती है। भगवत द्रव्य स्वार्थ दृष्टि से वल्लभ कुल को भी बाधक है। भगवत द्रव्य स्वार्थ दृष्टि से ले तो ये सबके बाधक स्वरूप है। यही बताया मुख्य सिद्धांत यहाँ पे। और पुष्टि के लिए भागवत की कथा कहनी सर्वथा निषिद्ध है। वह शास्त्रों का विश्वास होना कठिन है। विश्वास ही फल है। व्यावृत्ति में तथा लाभ संतोष आवश्यक है। क्या है? व्यावृत्ति में यथा लाभ संतोष आवश्यक है। तो पद्मनाभ दास जी के प्रसंग में हमने देखा कि अव्यावृतो भजत कृष्ण, व्यावृत्ति से अव्यावृत्ति धर्म उत्तम है। मगर ये कली काल में ये धर्म रखना बहुत कठिन है, मुश्किल है। गुरु सुखाता भगवत श्रद्धा दी सुखिए, क्या बोलते हैं कि गुरु सुखाता भगवत समाधि वैष्णव को बाधक नहीं। सेवक के सामने स्वामी गुरु को श्रम हो तो दास धर्म ये बाधक है। दास धर्म में बाधक है कि सेवक के सामने स्वामी गुरु को श्रम हो तो दास धर्म महाबाधक है। वो भी पद्मनाभ दास के प्रसंग में हमने देखा कि लुटारा लुट गया तो पद्मनाभ दास जी अपना धर्म रखने के लिए महाप्रभु के सुखार्थ के लिए धर्म गिरी रख के वो पैसा लेके द्रव्य चुका दिया, मगर अपना सेवक धर्म बराबर निभाया। पाप पुण्य की इत्र भावना, पाप पुण्य की भिन्न भावना पुष्टि के समर्पण धर्म में बाधक है। वल्लभी वैष्णव में स्थायी भगवत बुद्धि होने पर जाति भावना बाधक है। तुच्छ कार्यों के लिए भगवान को श्रम नहीं देना चाहिए। परमार्थ कार्य की अहंता की भावना से नहीं करना चाहिए। परमार्थ कार्य भी अहंता की भावना से नहीं करना चाहिए। अहंता ममता हमारे जीवन में महाबाधक है। भगवत स्वरूप में अपना पराया भिन्न भाव नहीं रखना चाहिए। भगवत स्वरूप में अपना पराया ऐसा भिन्न भाव रखना नहीं चाहिए। ठाकुर को अत्यंत अन्यथा पधराकर निश्चित नहीं रहना चाहिए। ऐसा कोई कठिन संजोग आ जाए, हम ठाकुर जी दूसरे के घर में पधराइए तो निश्चिंत रहना नहीं चाहिए। वो भी हमने पद्मनाभ दास जी के प्रसंग में देखा। रामदास जी के ठाकुर पधारे थे, वो चोरी में पधारे, मोगल लेके गए तो रामदास जी ने भी खान पान छोड़ दिया, पद्मनाभ दास जी ने भी खान पान छोड़ दिया। ये सिद्धांत हमने पद्मनाभ दास जी की वार्ता में देख लिया। तो ठाकुर को अन्यत्र पधराकर निश्चित नहीं रहना चाहिए। गुरु बिना सर्वथा वर्जित है। गुरु में अत्यंत प्रीति रखनी चाहिए। गुरु द्रव्य भी हमारे लिए हमेशा के लिए वर्जित है। गुरु द्रव्य गुरुનો કણ અને વૈષ્ણવનો મન, गुरु का कण लिए तो वैष्णव को मन चुकाना पड़ेगा, इसलिए गुरु द्रव्य हमारे लिए महाबाधक है। अत्यंत कष्टदायी प्रसंगों में भी भगवत इच्छा जान धैर्य रखना चाहिए। जो महाप्रभु जी ने विवेक जलाशय ग्रंथ में बताया कि अत्यंत कष्ट वाली कोई पण प्रसंग आ जाए तो भी भगवत इच्छा सर्वोपरि जान के हमारे में धीरज रखनी चाहिए। कैसी? ભૂખ્યો રાખું ભોય સુવાળું, આવડી ઉતારું ખાલ, તો પણ મારામાંથી ન ડગે તો તને કર દઉં ન્યાલ। એ પ્રમાણે अपना अत्यंत कष्टदायी प्रसंग में भी भगवत इच्छा सर्वोपरि जान के धैर्य रखना चाहिए और निंदा को सहन करना चाहिए। कोई क्या बोलेगा वो नहीं, हमारा कर्तव्य क्या है वो देखना। कोई निंदा करे तो डर के सेवा नहीं छोड़नी चाहिए। न्योता हुआ वैष्णव प्रसाद न ले तब तक भोजन नहीं करना चाहिए। तो हमने किसी को बुलाया और वो नहीं आए वैष्णव, तब तक हम प्रसाद नहीं ले सकते। वो हमने तुलसा के प्रसंग में भी देखा, वाघाजी राजपूत के प्रसंग में भी आता है। तो जब तक वैष्णव प्रसाद नहीं ले तब तक हम प्रसाद नहीं ले सकते। घर में जब हमने वैष्णव को न्योता दिए
महाप्रसाद के लिए। वो जब तक नहीं भोजन कर ले तब तक हमको भोजन करना नहीं चाहिए। सर्वोपरि सिद्धांत बताया। वैष्णव में दोष बुद्धि आवे ऐसे प्रसंगों में भगवत इच्छा और दीनता के अनुसंधान में अपने में दोष बुद्धि करनी चाहिए। अपनों दोष विचार सखी सो कछु न कहिए, कृपा तो लालन झुकी चाहिए। ये सिद्धांत बताया हमारे में कि वैष्णव में दोष बुद्धि आवे ऐसे प्रसंगों में भगवत इच्छा और दीनता के अनुसंधान में अपने में दोष बुद्धि रखनी चाहिए कि हम दोष वाले हैं, ऐसा रखना चाहिए। दूसरे पर दोष का टुकड़ा ढोलना नहीं चाहिए। सेवा और स्मरण में दीनता आवश्यक है। बिना दीनता कुछ नहीं है। पत्ता के महल की जैसे इमारत टूट पड़ेगी, तो दीनता के पाया पर पुष्टि मार्ग की इमारत बंधी हुई है। तो मूल में दीनता नहीं तो कुछ भी नहीं है। सेवा और स्मरण में दीनता आवश्यक है। सर्व भगवत फल में गर्व भगवत फल में बाधक है। गर्व अहंकार नहीं करना, अहंकार को दुष्ट बताया है, इसलिए अहंकार कभी भी नहीं करना चाहिए। जीव दोष वाला है, प्रभु निर्दोष है, फिर भी महाप्रभु जी ने अपने दोष नहीं देखे और हमारा ब्रह्म के साथ संबंध करवाया। और इतने दोष है कि दोष की फैक्ट्री बन जाती है। तो ये दोष हमारे लिए महाबाधक है। इसलिए अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ने कितने गिनाए, गिन नहीं सकते, इतना दोष हमारे में है। फिर भी प्रभु ने कृपा करके हमारे घर में विराजमान श्री महाप्रभु जी ने पधरा दिया। कृपा करके भक्त के सुख थे ठाकुर सुखी जानने। भगवती के सुख में ही प्रभु का सुख सोचना चाहिए। आगे देखिए, सेवा नियम पूर्वक करनी चाहिए। ताप क्लेश से फल सिद्धि। ताप में आप है, ताप को उल्टा करे तो पत्ता है। जब हम स्मरण नहीं करें तो पत्ता कैसे लगे कि प्रभु कौन सी निकुंज में विराजमान है, हमारा प्रिया प्रीतम की कौन सी लीला है। तो ताप क्लेश से फल सिद्धि है। ताप कब होए? भगवती के सत्संग से, भगवत वाक्य से शास्त्रीय मर्यादा का उल्लंघन आवश्यक है। एक कृष्ण भट्ट उज्जैन वाले रस विलासिनी सखी के प्रसंग में हमने देखा, ठाकुर जी ने आज्ञा करी, फिर भी गुरु की आज्ञा सर्वोपरि जान के वो गुरु के घर पधारे। भगवत वाक्य से शास्त्रीय मर्यादा का उल्लंघन आवश्यक है। प्रेम में मर्यादा का तिरोधान होता है। त्रिविध भक्त वाक्यों का पालन अधिकार अनुसार समझकर करना चाहिए। मूर्ति में भगवत भाव की व्याख्या। मूर्ति में भगवत भाव की स्थापना के समय पंचामृत आवश्यक है। जब पुष्ट ठाकुर जी कराते हैं न, तो बालक पंचामृत स्नान करवाते हैं, स्वरूप का आविर्भाव होता है। पुष्टि मार्ग में महादेव जी मर्यादा भक्त रूप में स्वीकृत है। निवेदन का अनुसंधान भगवती के साथ करना चाहिए। निवेदनम तो स्मर्तव्यम सर्वथा तादृश नहीं। जे नवरत्न ग्रंथ में श्री महाप्रभु जी आज्ञा करी है कि निवेदन का अनुसंधान भगवती के साथ करना चाहिए। गुरु आज्ञा से आदर्श वैष्णव अष्टाक्षर मंत्र की दीक्षा दे सकता है। पुष्टि मार्ग में सारस्वत कल्प की लीला मान्य है। वैष्णव द्वारा सुना हुआ नाम मंत्र फिर गुरु से यथावकाश लेना चाहिए। जब भी गुरु मिले तभी ये लेना चाहिए। वैष्णव नाम दे सकते, निवेदन नहीं करा सकते। भगवती को काल बाधा नहीं कर सकता। जो डोकरी का प्रसंग आते हैं ना, गुसाई जी का अनन्य सेवक माँ जी ने 8 बार काल को वापस भेजा, तो इसका नाम अष्टपदी रखा गुसाई जी ने। तो भगवती को काल बाधक नहीं कर सकता, भगवती को काल बाध नहीं कर सकता। तीर्थ यात्रा भगवत संबंध विचार के ही करनी, फल आशा से नहीं कि ये परिक्रमा करेगा
तीर्थ यात्रा करें तो ये फल मिलेगा, ये आशा करके परिक्रमा या कुछ भी करना नहीं चाहिए। वैष्णव को सभी परिस्थितियों में लोक वेद से निरपेक्ष रहना चाहिए। के रहत निरपेक्ष अपेक्ष नहीं कहोगी। श्रीमद आचार्य चरण नख चंद्र को ध्यान रहत उर्मे सदा जिनके। किसी की भी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अपेक्षा महादुखदायी कष्टदायक है। अपेक्षा या लेने की भावना है। जो हमारे घर में विराजमान है, इसमें क्या कमी है अपने शरीर स्वरूप में कि दूसरों की हम अपेक्षा रखें। नहीं लौकिक में नहीं अलौकिक में, कहीं भी अपेक्षा रखनी नहीं चाहिए। तो अपेक्षा रखनी हमारे में बाधक है। पुष्टि मार्ग में सारस्वत कल्प की लीला मान्य है। वैष्णव की सभी परिस्थिति में लोक वेद से निरपेक्ष रहना चाहिए, किसी की अपेक्षा नहीं। वैष्णव को अपने ठाकुर की सेवा गुरु भाव से करनी चाहिए। इससे पुष्टि का परम लक्ष्य दासानुदासत्व भी सिद्ध होता है। गाय की सेवा ठाकुर जी की सेवा के समान है। पुष्टि मार्ग के इष्ट व्रजभूमि और श्री कृष्ण है। सेवोपयोगी वस्तु को बहुत मोल में खरीदना, खरीदते समय भाव की खेचातानी नहीं करनी चाहिए। यहाँ हमें जमनादास क्षत्रिय की वार्ता याद आती है न। एक गुलाब का फूल का 1,00,000 रुपये दिए, क्योंकि इनमें ब्रज भक्तों की झांकी हुई कि ये म्लेच्छ के हाथ में जाएगा तो वेड़फा जाता है, वेड़प जाएगा। तो अपने भाव में बढ़ती करी, 1,00,000 रुपया સુધી बोली बुलाई और फूल खरीद लिया। ये फूल जब ठाकुर जी को अंगीकार करवाया तो ठाकुर जी का श्री मस्तक झुक गया। फूल के वजन से नहीं, जमनादास क्षत्रिय के भाव से, स्नेह के भाव से, प्रेम से प्रभु का मस्तक झुक गया। तो स्नेह ही सर्वोपरि वस्तु है। पुष्टि मार्ग में सेवोपयोगी वस्तु का बहुत मोल में खरीदना। ये मुरमुरा लेने के गए, 1 टका की जगह 2 टका दिए कृष्णदास जी ने, फिर मुरमुरा लेके पधारे। मगर उत्तम वस्तु हमने देखी, बाजार में गए तो मोल भाव करना नहीं चाहिए, कम नहीं कराना, जितना बोले इतना ही दे देना चाहिए। क्योंकि ठाकुर जी के लायक है तो इसका मोल क्या करें। और ठाकुर जी के नाम लेके कोई वस्तु की खरीदनी नहीं करनी चाहिए। हमारा ठाकुर जी हमारा धन है, हमारी निधि है, ये गुप्त रखने का है, जाहिर की वस्तु नहीं है। भगवत सेवा के समक्ष लौकिक वैदिक धर्म तुच्छ है। वेद विधि का नेम नहीं, प्रेम ही पहचान। जब भी प्रेम सच्चा स्नेह हो जाए तभी कुछ भी बाधक नहीं होता। सेवा छोड़ी के तीर्थादि नहीं करनी चाहिए। सेवा छोड़ के कहीं भी जाना नहीं चाहिए। एक लौकिक माँ भी अपने बच्चे को छोड़ के कहीं नहीं जाती है। 6 महीने का बालक है तो उसको छोड़ के क्या माँ चली जाती है? ऐसी तरह हमको भी हमारे सेव्य स्वरूप को छोड़ के कहीं भी जाना नहीं चाहिए। सेवा छोड़ के कहीं भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अपने सेव्य को अपना सेवक ही अति प्रिय है। जैसे बालक को माँ प्रिय है और माँ को बालक प्रिय है, ऐसी तरह ही सेव्य को सेवक प्रिय है और सेवक को सेव्य स्वरूप प्रिय होना ही चाहिए। इसलिए अपने सेव्य स्वरूप को छोड़ के कहीं भी जाना नहीं चाहिए। अपनी भावना को गोप्य रखनी चाहिए। भाव रूपी समृद्धि वाणी द्वारा बाहर न निकल सही, उसकी आवश्यकता है, ख्याल रखना चाहिए। अपनी भावना को गोप्य रखनी चाहिए। पुष्टि सजीव इस संसार के जीवों से भिन्न है, अलग ही है। पुष्टि जीवों का प्रागट्य भगवत सेवार्थ और पुष्टि धर्म प्रकट करने के लिए है। सेवा, स्मरण और सत्संग पुष्टिस्थ जीवों का मुख्य कर्तव्य है। भगवान और भगवदियों में किंचित भी तारतम्य नहीं। भगवदी एक ही ताको जानो न्योन। भगवदी और भगवान को अलग समझना नहीं चाहिए।
भक्त कवि दयाराम भाई ने भी ये बताया कि हरि गुरु वैष्णव समान लेको, भेद भाव हृदय न देखो। स्वरूप गुण लक्षण आदि समान है। भगवान और भगवद्गीता में किंचित भी तारतम्य नहीं है, अलगपन नहीं है। स्वरूप गुण लक्षण आदि समान है। व्रज भक्तों की भावना के अनुसार विरह होना चाहिए। ब्रज की गोपी घर में ही बन कीनो। ब्याज का द्रव्य महाहीन है। उस द्रव्य से की हुई सेवा से प्रभु संतुष्ट नहीं होते। ब्याज लेकर सेवा नहीं करनी चाहिए। ब्याज के द्रव्य से सेवा नहीं करनी चाहिए। प्रभु को संतोष नहीं होता, प्रभु को श्रम होता है। प्रभु कर्तुम अकर्तुम और अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्य विरुद्ध धर्म रूप है। प्रभु द्वारा साक्षात कार्य सिद्ध होने पर वैष्णव को प्रसन्न न होना, क्योंकि प्रभु को श्रम हुए, इसमें वैष्णव का सुख नहीं है। प्रभु को सुख मिले वही वैष्णव का सुख होना चाहिए। जिस अप्रस को प्रभु को श्रम हो वह काम ही नहीं। वैष्णव को धैर्य से त्रिविध दुख सहन करना चाहिए। हम संसारी गृहस्थ आदि व्याधि उपाधि हमारे जीवन में आती रहती है, मगर इस समय भी वैष्णव को धैर्य रखना चाहिए। वैष्णव को धैर्य से त्रिविध दुख सहन करना चाहिए। गुरु की आज्ञा का प्रसन्नता पूर्वक लोक लज्जा का भी त्याग करके पालन करना चाहिए। छोटी बड़ी सब सेवा भाग्यवान हो करनी चाहिए, भाग्य मान के करनी चाहिए। कोई सेवा छोटी नहीं, कोई सेवा बड़ी नहीं है। वो अपना भाग्य समझकर ये सेवा करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सकरी की सेवा उत्तम है, सोहनी की सेवा नहीं। अपने भाग्य में प्रभु हमारा सेवा हमारे आगे कराते ही वही प्रभु की कृपा है हमारे लिए। लौकिक कामना से सेवा नहीं करनी चाहिए कि मेरे घर होएगा, मेरे बच्चे होएंगे, मेरे गाड़ी बंगला होएंगे। लौकिक कामना कुछ भी नहीं होनी चाहिए। लौकिक कामना से सेवा कभी भी नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण सर्वोपरि है, अन्य सब देव उनके अधीन है। जगत वृक्ष मूल श्री हरि है, मूल सींचे वृक्ष सिंचाई। दयाराम भाई ने यही बताया कि अपने गोवर्धन धर से इससे अधिक कोई नहीं है। श्री कृष्ण ही सर्वोपरि है, अन्य सब देव इनके अधीन है। जैसे बड़ा प्रधान है, उन्हें अन्य खाता खोल के रखा है, रेलवे खातू, संरक्षण खातू, ये सब खाता खोल के रखा है। बड़ा प्रधान सबको सौंप देते हैं। इसी तरह शोरूम में सेल्समैन को वो सब कार्य सौंप देते हैं। इसी तरह हमारे सेविय, हमारे ठाकुर जी, हमारे गोवर्धन धर मेन है और अन्य देव इनके अधीन है, वही समझना। उधार द्रव्य से की हुई सेवा कर न चुके तब तक द्रव्य देने वाले की होती है, हमारी नहीं। इसलिए किसी के द्रव्य से हमें सेवा नहीं करनी चाहिए, चाहे दाल रोटी आरो गाए, मगर किसी के द्रव्य से हमारी सेवा प्रभु स्वीकारते नहीं। इनकी सेवा हो जाती है जो द्रव्य देते हैं, हमारी नहीं होती है। किशोरी बाई का प्रसंग में आता है न, पुष्टि भक्ति की मानसी तनुजा सेवा के साथ होनी चाहिए। तनुजा वितजा, तनुजा तो अपने तन से की हुई सेवा, वितजा सेवा ये तो अपने द्रव्य से की हुई सेवा। और मानसी सेवा तो कृष्ण सेवा सदा कार्य मानसी सा परामता है। सेवा करने से मानसी सिद्ध होती है। सेवा में स्नेह की मुख्य है, ज्ञान नहीं। हमारा मार्ग स्नेह का है, ज्ञान का नहीं है। ये मार्ग है, प्रेम का मार्ग है। तो सेवा में स्नेह की मुख्यता होनी चाहिए, ज्ञान की नहीं। ज्ञान नहीं हुई तो चले, भक्ति के बिना ज्ञान पांगड़ा है। अति विरह से वस्तु की शुद्धि होती है। सेवा की मर्यादा जीव के लिए आवश्यक है, अति आवश्यक। निष्कपट शुद्ध भाव से ही प्रभु प्रसन्न होते हैं। जहाँ प्रपंच होते हैं वहाँ प्रभु हरगिज नहीं विराजते। तो निष्कपट भाव रखना चाहिए अपने हृदय में
क्योंकि भक्त के हृदय में प्रभु अपनी निकुंज बनाकर शयन करते हैं। भक्त के भवन में वास करियो, सेवा का फल सेवा ही है। ठाकुर प्रसन्नता पूर्वक आरोग्य तब जानिए जब वैष्णव महाप्रसाद की सराहना करे। भगवदीय उदार होते हैं, दीनता से प्रभु प्रसन्न होते हैं। आजकल वैष्णव में ही धर्म है। भगवदी के एक क्षण के संग से उत्तम जीव का कार्य होता है। भगवद इच्छा से लीला में शापादी है। भगवद इच्छा से लीला में शापादी है, श्राप में भी आप है। वैष्णव की बुद्धि के प्रेरक श्री कृष्ण है, बुद्धि प्रेरक कृष्ण शिव। वैश्यादि का भी पुष्टि मार्ग में अंगीकार है। राणा व्यास के प्रसंग में आता है, कृष्णदास ने कई वैश्या की छोरी को अंगीकार करवाया, तो वैश्यादि का भी पुष्टि मार्ग में अंगीकार है। प्रेम के भरते मर्यादा छूटे वह बाधक नहीं। जब प्रेम हो मर्यादा छूट जाए वो बाधक नहीं है। देखा देखी मर्यादा का त्याग बाधक है। देखा देखी करके त्याग करना नहीं चाहिए, वो हमारे लिए बाधक नहीं महाबाधक है, महाबाधक। पुष्टिष्ठ प्रभु भक्त की इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। अन्य मार्गीय की सामने हृदय का भाव गोप्य रखना। हमारे हृदय में चाहे कितना भी भाव हो, मगर अन्य मार्ग के सामने अपना भाव गुप्त रखना चाहिए, गोप्य रखना चाहिए। तो भाव रूपी समृद्धि को वेड़पना नहीं चाहिए। जो महाप्रभु जी ने कृपा करके हमारे में रंचकी दान किया है, तो भी रंचकी दान जो पात्र है इसका ये प्रमाण से दान हुआ है। अधिकार बिना वस्तु मले तदपि अर्थ ना सरे। अनअधिकारी के आगे, अवैष्णव के आगे हमारा भाव गुप्त रखना चाहिए। हाँ, पुष्टिष्ठ प्रभु भक्त की इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। अन्य मार्गी के सामने हृदय का भाव गोप्य रखना चाहिए। सेवा में बाधक हो तो स्त्री आदि का भी त्याग आवश्यक है। त्याग के समय उनके खर्चादि का प्रबंध करना चाहिए, ये उचित है। दिवाले का प्रसाद नहीं लेना चाहिए। मानसी प्रकार से भोग धरा जा सकता है। अहंकार से सेवा छूट जाती है। क्षत्रिय अहंकारी बताया नहीं, ये अहंकार की हुई सेवा प्रभु नहीं स्वीकारते। अहंकार से सेवा छूट जाती है। पुष्टिस्थ जीव को मर्यादा स्वरूप की सेवा बाधक है। मूल लीला के अनुसार भूतल पर भी स्नेहादि संबंध रहते हैं। हट करके गुरु की आज्ञा का उल्लंघन बाधक है। लीला संबंध के ज्ञान वाले को असमर्पित खान पान निषेध विशेष बाधक है। वैष्णव का क्लेश प्रभु सहन नहीं कर सकते। वैष्णव को हमेशा आनंद में रहने चाहिए, ये प्रभु नहीं सह सकते। जो आज जो भी सत्संग हुआ वो कल भी हम करेंगे बाकी के। तो जो सत्संग हुआ ये प्रभु कृपा से, ये प्रभु के चरण में हम समर्पित करते हैं। और श्री वल्लभ प्रभु के चरण कमल में कोटान कोटि दीनता पूर्वक दंडवत प्रणाम। एवं श्री वल्लभकुल परिवार के चरण कमल में कोटान कोटि दीनता पूर्वक दंडवत प्रणाम। और सर्वे वल्लभी वैष्णव को स्नेह पूर्वक भगवत स्मरण। श्री वल्लभाधीश की जय हो।